Linear equation of two variables. In this chapter we can explain about linear equations. Linear equation, an equation which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a and b are not both 0. A square plus b square does not equal to 0. If any equation is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, it is called linear equation because it have degree 1 and have two variables, so it is called linear equation of two variables. Each linear equation represent equation of line. So with the help of linear equation we can find out value of linear equations x and y and can draw and straight line in the coordinate axis. A square, a and b are not both 0 because if a and b, if value of a and b are 0, then equation are not linear. So it is compulsory a and b are not both 0 because in each conditions. So for become linear equation. Each solution x y of ax by plus c is equal to 0 correspond to a point on the line represent the equation and vice versa. Solution of x and y, value of x and y is called solution of the equation. If x and y, that value of x and y which are satisfy linear equation, then it is solution of that linear equation. If x and y, if value of x and y is not satisfy ax plus by plus c is equal to 0, so it is not called value of linear, so it is not called solution of linear equation. Then thus it is compulsory to satisfy a linear equation value of x and y for making solution. 2x plus 4y is equal to 10. For example, 2x plus 4y is equal to 10 is the linear equation. X is equal to 1, y is equal to 2, each x is equal to 1, y is equal to 2 is the solution of that linear equation because x is equal to 1, y is equal to 2 satisfy this linear equation. When we can see that x is, when we put x is equal to 1, y is equal to 2, then x is equal to 1, 2 1 ja 2, 4 2 ja 8, after adding 2 plus 8 is equal to 10, then left hand side is equal to right hand side, so it is the solution of linear equation. X is equal to 1, y is equal to this solution of 2x plus 4y is equal to 10. नेक्स्ट स्टेप, अगर इस तरह से मतलब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ऐसे कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर x और y की जो भी वैल्यू उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा. सेटिस्फाई करने के लिए हम x और y, हम कैसे पता करेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हम x और y की वैल्यू उस इक्वेशन में रख दें. अगर उस वैल्यू पे उसके दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, जैसे मैंने इसमें लिखा है x और 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 रख देने पर ये दोनों साइड इक्वल हो गया था, तो हम बता दिए कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, ये इसका सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. अब देखो जैसे यहाँ पे दिया है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. It is the pair of linear equation of two variables because it has two equation. It's two equation. So in this case we can find out solution of x and y, solution of this equation which is the value of x and y. For finding these value we can solve these equations and find out the value of the pair of linear equations. Pair of linear equations satisfy both equations. कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो दोनों
वैल्यू ये इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसको मतलब सॉल्व करने का मेथड्स है और उसको हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद है उसमें है 3 मेथड्स हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड्स को बताऊंगा और इसमें से जरूर एग्जाम में एक टॉपिक आता है, कंपलसरी है। और कंडीशंस क्या हैं, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इसके कंडीशन ये दोनों इक्वेशन हैं। तो इनके लीनियर इक्वेशन हमने पहले भी बताया कि लीनियर इक्वेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं सभी लीनियर इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब इस लीनियर इक्वेशन और ये दोनों लीनियर इक्वेशन की वैल्यू अगर देखें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कभी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, कभी पैरेलल लाइन हो सकता है कोइंसिडेंट हो। ये 3 कंडीशंस होते हैं। मतलब सॉल्यूशन ऑफ मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी कैन ड्रॉ ग्राफ, देन वी कैन फाइंड आउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। Without drawing we can find out graph, without drawing graph we can find out conditions of intersecting lines and parallel lines and coincident lines. These conditions, intersecting lines, in case of intersecting lines a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, exactly only one solution. If a1 upon a2, ratio of a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal, does not equal, then intersecting line exactly one solution। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन a1 upon a2 और b1 upon b2 दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हमारी लाइन बिना ग्राफ ड्रा किए हम बता सकते हैं कि जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और उसके ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन कोई एक पॉइंट हो गया, समझ ना, इसका एक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या फिर पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल लाइंस किस कंडीशन में होगा, a1 upon a2 b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 है, उस केस में पैरेलल लाइंस होगा, ग्राफ ड्रा होगा, उसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, समझ ना। कोइंसिडेंट लाइन होगी तो a1 upon a2 does not a1 upon a2 equal to b1 upon b2 c1 upon c2 तब होगा जब अगर कोइंसिडेंट, जब ये इक्वल होगा तभी कोइंसिडेंट लाइन होगा। और इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन क्या है, सभी पॉइंट वो लाइन उस दूसरी लाइन का जो इक्वेशन है इसकी जो वैल्यू है मतलब वो लाइन उसी पे ही लाइन उसी लाइन पर ही लाई करेगा, समझ में। तो इस तरह से है, मतलब हम बिना सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि हमारा जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। बिना ग्राफ ड्रा किए इस कंडीशन पे पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन होगा। इसमें इसके कितने सॉल्यूशन हैं, ओनली वन सॉल्यूशन है। सिर्फ इसके रेशियो को मतलब रेशियो का कोफिशिएंट के रेशियो का कंपेयर करके हम बता दे रहे हैं कि इसके ओनली वन सॉल्यूशन है, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे लीनियर इक्वेशन को बिना सॉल्व किए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। दिस